Hello students, in our 10th class, I am going to start today a new topic, electromagnetic induction. In the chapter, magnetic effects of current, we have done till the electric motor. Two basic things I want to rewind again, what we have done here. First is that if there is a current in a conductor, then it produces a magnetic field, right? Second thing is, if a current carrying conductor is kept in a magnetic field, then both the magnetic fields, one of the conductor and second of the magnet, apply a force on each other. On the basis of this, we have studied electric motor. Maxwell's right hand thumb rule was telling the direction of magnetic field here, and Fleming left hand rule, here is Fleming left hand rule, will tell the direction of the force, in which direction it will move. Now we are on the third part of this chapter, electromagnetic induction. Always in a ninth class also you have studied that there is a action, that definitely is a reaction. One thing is applying a force on somebody, then that body will also apply a force. The physics says, this is the physics principle. Like if current is producing the magnetic field, then scientist has thought that definitely the magnetic field will produce the current, है ना? अगर करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, जो कि ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया, तो साइंटिस्ट की ये सोच होंदी है, एक चीज अगर दूजे नू पैदा कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, तो वो दूजी ये पहले नू भी करूगी, वो किमें करूगी, वही असी आज पढ़ने जा रहे हैं. अब मैग्नेटिक फील्ड भी करंट नू प्रोड्यूस करती है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, शॉर्ट फॉर्म EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. Induction of current, electromagnetic induction. Electric magnetic induction means electricity produce करना with the help of a magnetic field. Electromagnetic, to produce electricity, induce electricity with the change of magnetic field. Then scientist has seen, before taking the principles, let me take one experiment which they have done. It is also known as Faraday experiments. I have taken a coil here and we connected this with the galvanometer. You know, galvanometer is a device which will tell the presence of current. कितना करंट है ये तो नहीं दसता भाई 2 एम्पीयर है 3 एम्पीयर है, पर है ज्यादा या कट ये दस देता है, ठीक. Then we have connected with this coil, this galvano, and galvanometer remains this way, the points and integrated at the center, right? So we have taken one bar magnet and we have placed this bar magnet inside this coil. अंदर उसनु होल्ड रखता रख्या galvanometer कुछ नहीं होया, deflection is same, okay, zero is the deflection. Whether you are keeping it in the center or somewhere else or outside, but it should be at a rest position, then galvanometer shows zero deflection. Then this galvanometer shows the deflection when we have moved it near to the coil. जब असी इस बार मैग्नेट को क्लोज लेके आए तो इस गैल्वेनो ने डिफ्लेक्शन दी थी. मान लो राइट, कुछ भी हो सकती है, राइट लेफ्ट कुछ भी हो सकती है, डिपेंड करता होता बेटे तुसी एक किमें जोड़िया होया, ठीक है. प्लस और माइनस होंदे ने इहदे च, तो वो प्लस इधर जोड़ता तो राइट आ गई, लेफ्ट जोड़ दोगे तो लेफ्ट आ जाएगी, मतलब नेगेटिव जोड़ दोगे तो लेफ्ट आ जाएगी. आप इमेजिन कर लिया कि bar magnet north is coming near,
then this shows the right deflections. Okay, ये उन्होंने देखा कि जब बार मैग्नेट नजदीक लेके आ रहे हैं तो ये राइट डिफ्लेक्शन दे रहा। करते 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 रुक गए, जिमें रुके इसकी डिफ्लेक्शन जीरो हो गई और इसको दूर लेके गए अवे, जिमें डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट चेंज करती तो देखिए कि डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी चेंज हो गई। ये चीज़ां ऑब्जर्व हुई। पहली चीज रेस्ट कोई डिफ्लेक्शन नहीं आई, दूजी चीज क्लोज आया तो राइट डिफ्लेक्शंस, दूर गया अवे गया तो लैफ्ट डिफ्लेक्शंस। इन्नी गल्लां समझ आ गई। इन्हां गल्लां ते गल समझ आई भी जिवें ये बार मैग्नेट हुंदा ना बेटा, तुसीं मैग्नेटिक फील्ड लाइनस बार मैग्नेट दी बना के आए हो है ना, नॉर्थ ते बाहर नूं निकलदियां ने एवें करके, ठीक है, एवें निकल रही है। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइनस एवें निकल रही है ना, इन्हों मैं नजदीक लेके आऊंगा तो ज्यादा ये चली जाएगियां, दूर लेके चला जाऊंगा तो घट जाएगियां। समझा ना कि मैं, देखो मैं दोबारा दसता तो ड्रा करके, दिस इज अ बार magnet here, okay, and it produces the magnetic field lines this way, okay. if you will be close, नजदीक लेके आओगे तो ये सारी लाइनें इतने आ जाएंगी, बढ़ गई, चेंज हो गई ना, दूर लेके जाओगे तो घट जाएंगी है ना। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने वो चेंज हो रही हैं, जब चेंज हो रही है तो ही करंट आ रहा। सारा बार मैग्नेट इतने अंदर सेंटर च रखता, सारिया लाइन्स ने ये सब ये ही ने, लेकिन हुण वो चेंज नहीं हो रही। 5 ने मान लो तो 5 ही ये ने, चेंज नहीं हो रही है तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। तो कंक्लूजन ये है कि इंड्यूस्ड करंट तो बनया बार मैग्नेट को क्लोज लाके, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स चेंज हुई, induced current is produced in the coil as long as there is a relative motion between the coil and the magnet. Relative means what? साइंटिस्ट ने फैराडे ने जब एक्सपेरिमेंट किया, पहले तो वो बार मैग्नेट को क्लोज लेके आया, दूर लेके गया, फिर उन्हें की किया, बार मैग्नेट को स्टिल करना, इतने रोक लिया है ना, मान लो ये बार मैग्नेट इतने रख लिया, कॉइल दूर और नजदीक लेके गए है ना, क्लोज एम मूवमेंट करती भी डिफ्लेक्शन आई। मतलब ये है कि चाहे बार मैग्नेट क्लोज आ रहा हो, चाहे कॉइल नजदीक आ रही हो या दूर जा रही हो, करंट बन ही रहा। मतलब क्या है, रिलेटिव मोशन होना चाहिए, वो एक दूसरे के दूर या क्लोज आ रहे होना चाहिए। अगर वो आएंगे तो जो है करंट बनया, इंड्यूस करंट बनया, गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट बन रहा। समझ आ रहा। एक गल होर नोट की गई कि अगर फास्ट मोशन होएगा उन्होंने विच, तां जो डिफ्लेक्शन है इतनी आई सी ज्यादा हो जाती है डिफ्लेक्शन। जितना चेंज फास्ट होया ना मैग्नेटिक फील्ड का, जितना फास्ट मोशन होएगा दोनों का रिलेटिव मोशन, उतना ज्यादा करंट बनया। ये गैल्वेनोमीटर की जो डिफ्लेक्शन है ये दिखी कि जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट असी लिया उतनी ज्यादा इतने डिफ्लेक्शन आई। करंट डिपेंड डायरेक्टली ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जितने कॉइल दे विच टर्न्स ज्यादा सी उतनी ज्यादा करंट बनया, जितना स्पीड रिलेटिव मोशन जितना ज्यादा सी उतना ज्यादा बनया। गल्लां समझ आ रही है ने बेटा। इस फिनोमिना नू प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट नू असी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का इंड्यूस होना मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर दे विच बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड in it is called electromagnetic induction. It lasts till there will be a change in magnetic field. जब तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज होएगी तब तक ही करंट रहेगा। चेंज रुक गया तो रुक जाने। मान लो तुम मैग्नेट को ऐ लेके आ रहे हो, डिफ्लेक्शन आ रही है, इतने रोक दो तो डिफ्लेक्शन जीरो हो जानी है बेटा। समझा क्या? करंट सो प्रोड्यूस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सो प्रोड्यूस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ। एक ही होती है इंड्यूस्ड ईएमएफ, असी
हायर क्लासेस प्लस 2 पढ़ांगे, फिलहाल तुम लर्न कर लो इलैक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है। ठीक है बेटा, इन्हें समझ आ गया। अगर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो गया है ना, तो वो करंट जो है वो किस तरफ उसकी डायरेक्शन की होएगी, आ चीज समझनी है। जिमें असी एक करंट सी उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट हैंड मैक्सवेल के राइट हैंड रूल नाल पता की, मैक्सवेल राइट हैंड, और एक करंट कैरिंग वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड च रखा तो उसके ऊपर जो फोर्स आई है ना, फोर्स आई वो फ्लेमिंग दे लेफ्ट हैंड रूल नाल पता की। हुण करंट की होएगा, इंड्यूस करंट उसकी डायरेक्शन की होएगी, वो फ्लेमिंग दा राइट हैंड रूल दसेगा। एक बार फिर रिपीट करदा, मैक्सवेल दा रूल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दस रहा, फ्लेमिंग दा लेफ्ट रूल फोर्स दस रहा किस तरफ लगेगी करंट कैरिंग वेक्टर ते, और राइट हैंड रूल दसेगा कि करंट जो है वो जो बनया है वो किस तरफ बनया है, इंड्यूस करंट। ओके, चाहे फ्लेमिंग द लेफ्ट हैंड लगा लो, चाहे लेंजेस दा लॉ लगा लो, दो चीजें हैं, दोनों नाल इंड्यूस करंट की डायरेक्शन पता लगती है। हुण ये सबसे पहले मैं लूंगा बेटा कि ये फ्लेमिंग दा राइट हैंड रूल की है। मान लो तुहाडे कोल एक तुसी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई, इत्थे नॉर्थ पोल, इत्थे साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ हो रही है, तो पता है इट इज नॉर्थ टू साउथ। पता लग गया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन समझ आ गई। इधे विच असी एक कॉइल, ये मान लो कॉइल, ठीक है, और इस कॉइल असी एंटी क्लॉकवाइज घुमा लिया, ABC। This is helpful in our next topic, that's why I am taking the same example. Okay, एंटी क्लॉकवाइज घुमा लिया। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब की है, हम समझो ये जो क्वाइल है, जिमें मेरा हाथ है एम पे ही है, ठीक है, मैं अपने हाथ से अगर निशान ला ला, दिस इज, ठीक है, हाँ, ये जो है ए बी साइड है, और ए बी साइड एंटी क्लॉकवाइज। मान लो मैं तुम्हें खड़ा, अगर मैं इसको ए घुमावा तो एंटी क्लॉक एम है, ठीक है, एम घूम रहा। ये जो ए बी साइड है ये नीचे नू जा रही, नीचे नू, और ए वाली ऊपर नू, देखो ए आ रही ना ऊपर नू, और ए वाली ए बी साइड, समझ आ रहे हो बेटा, देखो ए बी साइड है और ये नीचे नू जा रही है, एम है, ठीक। और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। राइट हैंड लियो, स्ट्रेच करो जिमें असी पहले किया सी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर ईच अदर्स। सेम पैरामीटर ने, सिर्फ नाम चेंज करना एक फिंगर का। आ की हुंदा सी थंब, थंब की हुंदा सी, थंब हुंदा सी फोरस, इत्थे भी फोरस है, मोशन जिस तरफ वो घूम रहा, आप कॉइल को घुमा रहे हैं। आ की हुंदा सी मिडल फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड, इत्थे मैग्नेटिक फील्ड ही है। आ की हुंदा सी करंट हुंदा सी, करंट किस तरफ फ्लो हो रहा, इत्थे दा नाम इंड्यूस्ड करंट है। जस्ट दिस इज द चेंज, इंड्यूस किस तरफ इंड्यूस करंट बनेगा, और हमारा टारगेट क्या है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट आ दसेगा, ठीक है। हुण देखो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और ए वाली साइड नीचे नू जा रही है, दसिया सी ना तुहानू बेटा, नीचे नू जा रही है। करंट किवें आएगा, आ देखो मैं लग्या रखन, आ थंब नीचे चाहिए मैनू, आ ला रख लिया, मैग्नेटिक फील्ड ये देखो इस तरफ होगी, देख रहे हो बेटा, आ मैग्नेटिक फील्ड है, आ ए मैं रख लिया, राइट, और मेरी ए वाली फिंगर जो है इस तरफ नू आई है, मतलब एक डायरेक्शन ऑफ करंट, देखो एमएस करके सर्किट अपना करंट पूरा कर, क्लियर हो गया। दिस इज द वे टू अप्लाई फ्लेमिंग राइट हैंड रूल टू फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, क्लियर। एक बार फिर से समझ देने, इस साइड लगा के मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और ए वाली साइड ऊपर नू आ रही है ना,
आ नीचे नू आ ऊपर नू आ रही है। देखो हुण ये है मैग्नेटिक फील्ड इधर, थंब ऊपर नू, करंट इधर नू आया। ये मैग्नेटिक फील्ड है, थंब ऊपर नू और ए ऊपर और ऊपर नू ही आया हुआ है। हुण लेंजेस लॉ, व्हाट इज लेंजेस लॉ? दिस इज द coil, okay, let's redraw it. This is a cylindrical core materials and on it this is a coil, okay, this way coil is there. Just imagine here one bar magnet is coming near to it. Now what will be the direction of a current in this coil? अगर मैं इस तरफ खड़ जाऊं तो ए वाली जो चीज है, मान लो सेंटर है, ए वाला जो है मैनू ए दिख रहा है ना, आ कॉइल एमे आई, एमे अंदर नू जा रही है, ठीक है। ये नॉर्थ है और नॉर्थ क्लोज आ रहा। मैं तुहानू क्लॉक रूल समझा चुकिया है ना। क्लॉक रूल क्या सी? नॉर्थ बनाओ, आ डायरेक्शन आ गई, साउथ बनाओ नीचे नू, है ना। दिस इज क्लॉकवाइज मतलब साउथ, एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ। नो नॉर्थ इज कमिंग नियर टू दिस कॉइल, देन नॉर्थ विल बी प्रोड्यूस्ड हियर, ठीक है। रूल क्या है बेटा? लेंजेस लॉ कहता कि whatever is the cause of current, the current oppose that. Whatever is the cause of current, current oppose that. Induced current opposes its cause. Opposes its cause means north is coming near and that's why current is produced. Now the current will be such which will oppose the cause, which will oppose the cause. Meaning is नॉर्थ नजदीक आ रहा है, नॉर्थ बनना है। नॉर्थ का मतलब क्या है? देखो नॉर्थ का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज करंट होना है। आए एम है ना, ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एम होया, एम करंट होना है, ठीक है। एम ये सामने से मैं दिखूंगा तो एम करंट होगा। आ देखो एम हो गया, एम होया, एम इधरों करंट आ रहा है, मतलब इस तरह। ये देखो एम करंट आया, अंदर एंटर किया, फिर बाहर नू आके, ठीक है, फिर अंदर एंटर किया, बाहर नू आया, अंदर एंटर किया, फिर बाहर नू आया और इथों निकल गया। हुण देखो इस साइड से अगर मैं दिखूंगा तो एक करंट मैंने किवें दिखेगा? एम दिखेगा, देख रहे हो। और ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ओके। अगर मैं तुहानू समझावां कि मान लो ये दोबारा मैं अगर इस तरह एक होर एग्जांपल लवां बेटा, मान लो इथे साउथ है, इथे नॉर्थ है और ये दूर जा रहा है, ठीक है। इट इज गोइंग अवे। साउथ दूर जा रहा, इथे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होएगी तो इथे फिर करंट ऐसा बनेगा कि साउथ नू दूर नहीं जाने देगा। क्या बनेगा फिर? नेचुरली ये साउथ दूर जा रहे थे, इथे नॉर्थ बनेगा, साउथ नॉर्थ नू खींचेगा और इसनू दूर नहीं जाने देगा, ठीक है। फिर डायरेक्शन सेम होगी, समझ आ गया? कि नॉर्थ बनना है, थे नॉर्थ भी इतने बनया सी। मान लो इतने नॉर्थ सी, इतने साउथ सी, ओके, एंड इट इज गोइंग अवे, इट इज गोइंग अवे, ठीक है। हुण नॉर्थ दूर जा रहा, इतने करंट बनेगा जो कि साउथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन होएगी, जो इन्हें दूर नहीं जाने देगा। क्लॉकवाइज मतलब एम है ना, ए ना क्लॉकवाइज एम ए। आ देखो एम ए करंट हो गया, एम ए अंडर है, एम ए आ गया नीचे, एम ए उल्टी डायरेक्शन होगी। ये देखो क्लॉकवाइज, ओके। समझा रहे? लेंजेस लॉ, लेंजेस लॉ मींस north will come close, then north will produced. If north will go away, then south will be produced. If south will come close, then south will produced. If south will go away, then north will be produced. Clock rules. Okay. Thank you very much.